to another engaging episode of the ABCD Talk Show. I am Kaustubi, and today we are joined by an extraordinary guest, an experienced counseling psychologist dedicated to supporting individuals through emotional, behavioral, and academic challenges. Her expertise spans across helping students deal with exam anxiety, career uncertainty, relationship concerns, and mental well being, with extensive knowledge in psychometric assessments and dermatographics. She also conducts training in vocational psychology courses, equipping people with essential life skills. Let's extend a warm welcome to the insightful Jigyasa Sharma. Thank you. Thank you so much. I'm so grateful to be a part of this platform. Thank you so much for inviting me here. Thank you, ma'am. Yeah, We are very happy to have you here. same here, So same before here. we actually dive into our exam fear, which is our main topic of the talk show, I would like to ask you about dermatographics. What is it and how does it deal with psychology? How is it related to psychology? Right. To understand this, first of all, we need to understand what the dermatographics is, right? So dermatographics is a very new term for so many people these days, but it is not a new thing in the world. लाइक इट इज अ थिंग जो 200 साल पहले से चलती आ रही है, बट यस हो सकता है कि हमारे पास या हमारी कंट्री में ये अब आई है, राइट? तो जो आपका सवाल है उस चीज को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द डर्मेटोग्राफिक्स इज. सो डर्मेटोग्राफिक्स इज एक्चुअली अ स्टडी ऑफ अ fingerprints which tell us about the potential strength, brain functioning, personality of the person, either a child or an adult, anyone. Because जो हमारे फिंगर टिप्स होते हैं that is not going to be changed ever when you are in the mother's womb. जब हम 13 to 21st वीक की प्रेगनेंसी में होते हैं, वूम के जो पैटर्न्स बनते हैं वो तभी बन जाते हैं हमारे. सो द मोमेंट यू बॉर्न टिल यू डाई इट विल रिमेन सेम. तो जो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, हमारा बेसिक बिहेवियर, हमारा स्ट्रेंथ, पोटेंशियल, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग, हमारा टैलेंट, हमारे इनर ट्रेड्स, दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज एवर. तो डर्मेटोग्राफिक्स हमें ये सारी चीजों के बारे में बताती है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजी, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? Psychology is a study of mind and behavior. So behavior is what you are having a covert related to the environment. जो भी आप चीजें अपनी दर्शा रहे हो through your actions, what type of a thought pattern, cognition, behavior you are having, everything is visible through your behavior. तो अभी मैंने बात करी कि dermatographics tell us about the behavior and the inner strength, which is a basic thing which is not going to be changed. तो जब हम डर्मेटोग्राफिक्स से इट इज अ टूल, और डर्मेटोग्राफिक्स से जब हम किसी की टेस्टिंग करते हैं तो हमें जो बिहेवियर किसी का, बच्चे का, बड़े का पता चलता है, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि हम उसको उसके बिहेवियर एनालिसिस में उसको उसके बारे में जानने के लिए हेल्पफुल हो, राइट? सो साइकोलॉजी एंड डर्मेटोग्राफिक्स इज ऑलवेज रिलेटेबल. जो भी डर्मेटोग्राफिक्स यूज कर रहा है वो दूसरे इंसान के इमोशंस, बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग्स, उनका स्ट्रेंथ, उनके पोटेंशियल्स, व्हाट आर देयर वीकनेसेस, इन सब के ऊपर काम कर सकता है. So it involves your IQ, it involves your emotional quotient, it involves your thought pattern. So this is how it is very relatable, and this is very helpful from the field of psychology and from the field of dermatographics as well. So also, how is it related to our education and how does it help in career guidance of students? राइट. अभी जैसे मैंने बात करी कि थ्रू डर्मेटोग्राफिक्स यू कैन come to know about the personality, brain functioning, inner talent of the person. कितने किस लोब्स में कितना पोटेंशियल है. अब जैसे हमारे 10 फिंगर्स हैं, आर 10 फिंगर्स इज कनेक्टेड टू आर 10 लोब्स, राइट? अब आप बोलोगे कि मैम लोब्स तो 4 होते हैं, 5 होते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल टू हैव अ 10 लोब्स? सो हमारा ब्रेन दो हिस्सों में, आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज नोन एज लेफ्ट हेमिस्फीयर, अनदर वन इज नोन एज राइट हेमिस्फीयर, right? And our brain is having the 5 types of lobes: prefrontal, frontal, parietal, temporal, occipital. तो जब हमारे ब्रेन में ये 5 लोब्स हैं, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, तो उनको मिला के टोटल 10 हो जाते हैं. 5 इज ऑन राइट साइड, 5 इज ऑन लेफ्ट साइड. तो यही 10 लोब्स हमारे 10 फिंगर्स के साथ कनेक्टेड हो गए हैं. सबसे पहले ये चीज समझने की जरूरत है. और हर लोब की अपनी अपनी फंक्शनिंग है.
एक लोग है जो मेरे डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल है, एक लोग है जो मेरे लीडरशिप स्किल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, एक है जो मेरा मैथमेटिकल, रैशनल थिंकिंग, एनालिसिस, लॉजिकल माइंड हैंडल कर रहा है, एक लोब है जो मेरा हैंडल कर रहा है क्रिएटिविटी, एक का पार्ट है कि उसने कम्युनिकेशन, लैंग्वेजेस, बॉडी काइनेस्थेटिक, ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी चीजें हैंडल करनी है. सो इट इज रिलेटेड टू आर ओवरऑल बॉडी फंक्शंस, ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट एंड ओवरऑल ब्रेन फंक्शंस. तो जब मैं इस चीज की स्टडी करूंगी तो आई कैन एक्यूरेटली टेल द पर्सन अबाउट हिज करियर, कि उसके पोटेंशियल और उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके लिए कौन सा करियर सुटेबल रहेगा, वो अपने करियर को किस लर्निंग स्टाइल से अचीव कर सकता है, उसका पर्सनालिटी पैटर्न क्या है कि उसका बिहेवियर इस सिनेरियो में ऐसे निकल कर आएगा, एंड हाउ दे कैन यूज देयर स्ट्रेंथ एंड हाउ दे कैन improve their weaknesses. So for the career guidance, dermatographics is a accurate thing जो अपने स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को जान के अपने करियर में यूटिलाइज कर सकता है और अपना करियर सेट कर सकता है. Where does it build from? Is it because of the performance pressure or is it because of the fear of failure? What exactly is exam fear? आई थिंक इट इज बोथ. एक बच्चा है जिसको एग्जाम में डर लग रहा है कि हाउ माई रिजल्ट इज गोइंग टू बी. मैं एक बच्चा है जो सब कुछ पढ़ रहा है, बट द मोमेंट जब वो ओरल टेस्ट आ रहा है या जब राइटिंग का टाइम आ रहा है, उसको एंजाइटी होने लग गई है, वो बहुत एंशियस करने लग गया है कि ओके दिस इज अ क्वेश्चन एंड मैं इसका आंसर क्या लिखूं, अगर मैंने आंसर ठीक से नहीं लिखा आई डोंट गेट अ फुल मार्क्स. तो वो एक जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो चीज बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है. तो दोनों चीजें बहुत मैटर हैं. एक है कि यस देर इज अ परफॉर्मेंस प्रेशर, इट कैन बी अ फैमिली प्रेशर कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मम्मा इज गोइंग टू स्कूल मी, पापा इज गोइंग टू स्कूल मी, तो मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है, घर में सब इंटेलिजेंट हैं, अगर मेरे इतने परसेंट मार्क्स नहीं आए सो एवरीबडी इज गोइंग टू लाफ एट मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड एग्जाम फियर भी वहीं से ही बिल्ड होता है. जब हम अपने बच्चे को इतना डरा देते हैं कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये हो जाएगा, सब हंसेंगे, या समटाइम्स एज अ पेरेंट हम दूसरों के सामने भी अपने बच्चे को थोड़ा ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं करता है. तो वो जो एक इमेज कॉन्शियस है बच्चा, या उसको लगता है कि एवरीबडी इज गोइंग टू लाफ एट मी, तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट कर. इट कैन बी अ प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, और इट कैन बी अ एग्जाम फियर जो इंटर रिलेटेबल होता है. राइट. सो दिस इज हाउ इट इज. मैम, डू यू एक्चुअली थिंक कि हमारे कंट्री में एग्जाम्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है comparative to other places? Because हमारे यहाँ, if we see, most of the student suicidal cases are because of exam fear. And हमारे लिए रेगुलर क्लासेस, क्लास टेस्ट, इवन हमारे यहाँ क्लास में मैम क्वेश्चंस पूछती है, दैट इज नॉट एज इंटिमिडेटिंग एज एन एग्जाम इज. सो डू यू थिंक ये हमारी कंट्री में एक बिगर इशू है देन द अदर प्लेसेस? यस इट इज ट्रू. एक्चुअली हमारी कंट्री में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि इफ यू आर परफॉर्मिंग गुड इन द एग्जाम्स, अगर आपके फाइनल में एग्जाम्स अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छा आया है, आपने टॉप किया है, तो सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर, कि आपने मैथ्स में कितना अचीव किया है, आपके साइंस में कितना अचीव किया है, ओवरऑल व्हाट इज योर परसेंटेज, ओवरऑल व्हाट इज योर परफॉर्मेंसेस. बट nobody is focusing on the personality or the other activities the child may be good in. स्कूल में किसको इंटेलिजेंट माना जाता है? जो बच्चा कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, ये इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, या बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है. इट डजेंट मैटर कि वो बाकी सब्जेक्ट्स में कैसा है, इट डजेंट मैटर कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका बात करने का तरीका कैसा है, इट डजेंट मैटर हाउ देयर लीडरशिप स्किल इज, इट डजेंट मैटर कि उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या परफॉर्मेंस है, इट डजेंट मैटर टू एनीवन. बस बच्चा मैथ्स में अच्छा है, बच्चा साइंस में बहुत अच्छा है, बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा है. तो ये चीजें हमारे यहाँ एक्चुअली इंटिमिडेटिंग ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं कि आपने अच्छा परफॉर्म करना है, यू हैव टू get a good marks, otherwise you are not considered as a intelligent person. आपके ऊपर सब हंसेंगे, चाहे वो पेरेंट्स हैं वो आपको डांटेंगे, रिलेटिव्स हंसेंगे. रेगुलरली चीजें चल रही हैं, होमवर्क हुआ क्लास में,
या फिर क्लास टेस्ट हुए, नॉर्मल असेसमेंट्स हुई, असाइनमेंट्स हुई, दैट इज लिमिटेड इन द क्लासरूम। वहां आपके रिलेटिव्स को या पेरेंट्स को इतना इन्वॉल्व नहीं किया जाता। बट फाइनल एग्जाम या एग्जाम एक ऐसी चीज हो जाती है कि ओके, नाउ एवरीबडी इज गोइंग टू कॉल एंड एवरीबडी इज गोइंग टू आस्क कि हाँ भी क्या परसेंटेज आई है, क्या वो हुआ है। तो दैट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेशर और द एग्जाम फियर चाइल्ड इज फेसिंग, कि हाँ अब तो सब मुझे पूछेंगे। तो एग्जाम्स को और एग्जाम्स के मार्क्स को हमने इतना बड़ा डरावना चीज बना चुके हैं हम, कि बच्चा वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता। We have seen lots of suicidal cases, right? Someone is preparing for NEET, someone is preparing for IIT, someone is preparing for boards, और प्रेशर में आके इवन बिफोर द रिजल्ट, एग्जाम्स दे दिए बट रिजल्ट से पहले ही बच्चे ने कुछ सुसाइड कर लिया, या रिजल्ट के बाद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट वाज नॉट देयर तो उन्होंने कुछ गलत स्टेप उठा लिया। तो वो एक फियर ही है, वो एक डर ही है दैट वी कैन नॉट फेस द वर्ल्ड, और इट इज अ एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेशर कि हम अब दुनिया को कैसे फेस करेंगे। एवरीबडी इज गोइंग टू स्कोल्ड मी, एवरीबडी इज गोइंग टू लाफ एट मी। तो इन सब चीजों के कारण यस, एग्जाम्स को हमने बहुत बड़ा एक डरावना हुआ बना के रखा हुआ है, एंड वी नीड टू वर्क अपॉन दीज एरियाज फॉर श्योर। तो आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस दोगे टू हैंडल दैट प्रेशर, और उनके पेरेंट्स को स्पेशली, कि आप अपने बच्चे पे वो प्रेशर कैसे ना डालें, और अगर किसी स्टूडेंट पे वो प्रेशर है भी तो वो उस प्रेशर को कैसे ना ले और उस चीज को कैसे हैंडल करे? राइट। जब भी हम परफॉर्मेंस प्रेशर की बात करते हैं या बच्चे के एग्जाम्स की बात करते हैं, पेरेंट्स और फैमिली एनवायरनमेंट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट, बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर उसके पेरेंट्स ही डालते हैं। एग्जाम्स आ गए, एग्जाम्स आ गए, पढ़ 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 पढ़, यू हैव टू लीव ऑल योर अदर एक्टिविटीज। आप उसको बाहर खेलने नहीं भेजोगे, आप उसको टीवी नहीं दिखाओगे, आप उसका फेवरेट फूड नहीं बनाओगे, आपको बस 24 घंटे यू हैव टू ओपन योर बुक एंड स्टडी, बस आपका कोई तीसरा काम ही नहीं है। राइट, तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज समझना कि आप ही सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो बच्चे के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू गिव अ इमोशनल सपोर्ट टू योर चाइल्ड। अगर पेरेंट्स बच्चे को ये बोलें कि यू ट्राई योर बेस्ट, आपको अच्छा परफॉर्म करना है, अगर नहीं भी परफॉर्मेंस अच्छी रही, अगर एग्जाम का रिजल्ट नहीं अच्छा रहा, तो वी विल सी कि हम लोग कहाँ लैक कर रहे हैं, एंड हम उन सब चीजों के ऊपर काम करेंगे। सो इमोशनल सपोर्ट, जब बच्चे को पता है कि ठीक है, आई कैन ट्राई माई बेस्ट, एंड अगर नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स हैं। अगर रिलेटिव्स कोई हंसेगा या कोई बाहर के पीयर प्रेशर के कारण मैं कुछ भी बुरा फील करूंगा, एटलीस्ट आई हैव माई फैमिली हु इज गोइंग टू सपोर्ट मी। So family environment or emotional support of the family or the parents is very, very important, right? As a parent, you can motivate your child, you can encourage your child. Yes, आप मेरा सबसे बड़ी बात ये मानना है कि जैसे छोटे बच्चे हैं या कोई भी बड़ा बच्चा है, 10th के एग्जाम्स हैं, 9th के हैं, 3rd के हैं, 4th क्लास के हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि चाइल्ड हैव टू सिट ऑल द टाइम और वो बस अपना पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे। राइट, नो, आपका ब्रेन ऐसे काम नहीं करता। हर किसी को एक ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है, सेम आपके ब्रेन को भी ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप पढ़ो, आप अपनी सेल्फ स्टडीज पे फोकस करो, आप अपनी आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, कैसे चीजें सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हो जो आपका ब्रेन उस हिसाब से ट्यून होगा। करेक्ट। और ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अगर आप सारा दिन पढ़ रहे हो तो शाम को आप जैसे खेलने जाते थे, शाम को आप जैसे आउटडोर एक्टिविटीज करते थे, आपको वो करना भी उतना ही जरूरी है। राइट, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मुझे लगता है कि हर इंसान को, हर बच्चे को अपना लर्निंग स्टाइल जानना बहुत जरूरी है। you should know how you can easily learn things, right? It is not compulsory कि हर बच्चा आंखों से बहुत जल्दी सीख जाएगा। मे बी देयर ऑडिटरी स्किल्स आर वेरी गुड, मे बी देयर काइनेस्थेटिक स्किल्स आर वेरी गुड, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो अबाउट योर लर्निंग स्टाइल, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट योर लर्निंग स्टाइल। तब आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा जल्दी चीजें अच्छे से समझ आएंगी। करेक्ट। तो ये फैक्टर्स हैं। पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट इज सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सपोर्टिंग योर चाइल्ड इन ऑल द
क्राइटेरियाज, ऑल द एनवायरमेंटल कंडीशंस, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो आपके बच्चे को बहुत हेल्प करेगी उसके फियर और उसके एंजाइटी से निकलने। अभी तक हम लोगों की मार्कशीट वाज द ओनली डिसीजन मेकर जो हमें डिसाइड करता कि हम किस कॉलेज में जाएंगे, हमारा जॉब कैसी होगी, पैकेज कैसे होगा। सो बेसिकली हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे वो हम्म। हमारी मार्कशीट डिसाइड करती थी। सो डू यू थिंक कि वो सब चीजें अब चेंज हो रही हैं, मार्क्स से ज्यादा स्किल्स मैटर करती हैं, एंड हाउ इज दैट मेकिंग एन इम्पैक्ट? या इट इज गोइंग टू चेंज सून। एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस फर्दर वी आर एक्सपेक्टिंग। पहले क्या था कि हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि देर इज अ कंपल्सरी 4 स्ट्रीम्स, you can opt for the non-medical, medical, commerce or arts, right? If someone is very interested in chemistry, right, उसको सिर्फ केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है बट उसको फिजिक्स मैथ्स में या और किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, बट केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो यू हैव टू ऑप्ट योर नॉन मेडिकल, और फिर आपको जबरदस्ती फिजिक्स और मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी। बट ऐसा सुना जा रहा है और बहुत जल्द हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें चेंज हो रही हैं कि आप अब मल्टीपल स्ट्रीम से, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से अपने चूज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स। इफ द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री चूज करे। इफ द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन जियोग्राफी, वो जियोग्राफी चूज करे। इफ द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन बिजनेस स्टडीज, वो उसके साथ बिजनेस स्टडीज चूज करे। तो आप सारे मतलब स्ट्रीम में से आप कोई भी अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है कि चाइल्ड इज नाउ गेटिंग देयर फेवरेट सब्जेक्ट, राइट? हर बच्चे को अपना अपना फेवरेट सब्जेक्ट मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो उसको इंटरेस्ट के साथ, उसी फेवरेटिज्म के साथ पढ़ेगा। तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, पहली चीज। और ये हमारे जो मार्कशीट का एक डर है, एक चीजें हैं, वो चेंज करेगा। दूसरा, ये स्किल डेवलपमेंट, मे बी द चाइल्ड इज गुड इन द केमिस्ट्री, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में भी बहुत अच्छा निकल कर आ सकता है। हमेशा मैं ये बोलती हूँ, एकेडमिक्स अच्छी हो या ना हो, कम हो सकती है, बट जो आपकी एक्टिविटीज हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी दर्शाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी मार्कशीट आपका शायद कॉलेज एडमिशन करा सकती है, आपका स्कूल एडमिशन करा सकती है, बट लाइफ में आपको कैसे सेटल होना है, कैसे आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कैसे आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए, कैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इंक्लूड्स योर पर्सनैलिटी, विच मीन्स हाउ व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यू आर हैविंग। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द मार्कशीट एंड द मार्क्स यू गॉट इन योर 12th बोर्ड्स और 10th बोर्ड्स। तो उस चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अपने स्किल्स डेवलप करिए, दैट यू कैन सी द वर्ल्ड, यू कैन फेस द वर्ल्ड, चैलेंजेस को आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने बिहेवियर पे ज्यादा काम करें। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ना छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं है, मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, बट ये ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है। मार्क्स को इतना आप करो कि जो आप कर सकते हो, मतलब उतना अचीव करो जो आप कर सकते हो। ओवरलोड लेके या प्रेशर में आके चीजें खराब ही होती हैं, चीजें ठीक नहीं होती, एंड बिकॉज पोटेंशियल उतना ही है, वो उतना ही रिवर्ट देगा। या सो इट इज लाइक दिस। We talked about potential. So, are there any scientific methods that actually make us work up to our potential and give us the best result? May it be anxiety reduce करने के लिए some scientific methods, or how to actually study. हमने अभी बात करी, सबके learning methods अलग होते हैं. So, would you like to explain about it and how some basic scientific methods students can use to study effectively? या जिसे मैंने बात करी, सबके लर्निंग स्टाइल्स अलग होते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। देर आर 3 टाइप ऑफ पीपल हियर। वन, जो विजुअली बहुत एक्टिव होते हैं, वो देख के चीजें ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, एक बार देखा याद हो गया, राइट? ऐसे बच्चों को ब्लैक बोर्ड के पास बैठना चाहिए, फर्स्ट बेंच पे, राइट? कि देख के चीजें अच्छे से ऑब्जर्व करें, अच्छे से याद करें। सेकेंड, दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो सुन के चीजें बहुत अच्छे से लर्न करते हैं। ऐसे बच्चों को क्लास में कहीं भी बिठा दो, उनके बस टीचर्स के कानों में आवाज जानी चाहिए, राइट? ऐसे बच्चों को बोला जाता है कि आप बोल बोल कर पढ़ें, जोर जोर से पढ़ें, कि अपनी आवाज जब कानों तक जाएगी तो आप ज्यादा अच्छे से लर्न कर सकेंगे। दिस इज योर लर्निंग स्टाइल।
राइट। और एक होते हैं काइनेस्थेटिक बच्चे, कि जब तक वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते तब तक उनको चीजें समझ नहीं आती। तो दिस इज अ वैक थ्योरी, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, कि इधर यू आर गुड विद द विजुअल, इधर यू आर गुड विद और विद द ऑडिटरी और विद द काइनेस्थेटिक, राइट। तो सबसे पहले अपना लर्निंग स्टाइल जानने की कोशिश करो, उससे चीजें बहुत सॉर्ट होती हैं। सी शर्मा जी का बेटा सारा दिन बुक खोलकर बैठा रहता है, कोने में बैठा रहता है, और वो क्लास में फर्स्ट आया है। सो यू शुड ऑल्सो सिट इन द कॉर्नर, बी क्वाइट एंड जस्ट ओपन योर बुक और आप पढ़ो। हर माता पिता ये बोलते हैं, पर क्या पता कि बच्चा आंखों से, अगर वो बुक खोलते ही उसको नींद आ गई तो उसमें उसकी क्या गलती है। क्या पता उसको सुन के ज्यादा चीजें अच्छे से सुनेगी, तो उसके लिए तो शोर जरूरी है। जब तक वो जोर से बोल बोल के नहीं पढ़ेगा उसको चीजें नहीं समझ आएंगी। तो हर टेक्निक, हर चीजें एक हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। कि इफ अगर कोई टॉपर का तरीका ये पढ़ने का है तो जरूरी नहीं कि वो हर किसी का तरीका ये पढ़ने का होगा। मे बी देयर ऑडिटरी इज गुड, मे बी जब तक वो प्रैक्टिकली लिख लिख के याद नहीं करेगा उसको चीजें याद नहीं होंगी। तो सबसे पहले अपना लर्निंग स्टाइल जानो कि यू आर ऑडिटरी हाई, यू आर कैनेस्थेटिक हाईली, और योर विजुअल पार्ट इज हाई। ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। रेस्ट देयर इज अ लॉट्स ऑफ टेक्निक्स जो आप यूजुअली यूज कर सकते हो, अपनी कॉमनली आप यूज कर सकते हो। जैसे हमारे उसमें बोला जाता है पीपीटी। पीपीटी इज प्लेस पोजीशन टाइम। अब बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं, देर इज नो स्पेसिफिक टाइम, पढ़ रहे हैं तो 10 मिनट पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो 2-2 घंटे पढ़ ही रहे हैं। नो, आपको अपने ब्रेन की ट्यूनिंग ऐसी करनी चाहिए कि जैसे ही आप उस पोजीशन में बैठो तो चीजें रिकॉल होनी स्टार्ट हो जाए। सो एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव अ टेबल चेयर इन हिज और हर बेडरूम, या आपका जो भी स्टडी रूम है वहां आप एक टेबल चेयर रखिए एंड उस पोजीशन में पढ़ने की कोशिश करिए जिस पोजीशन में आप अपना एग्जाम देंगे। दिस इज हाउ यू ट्यून योर ब्रेन, कि ऐसे काम हो रहा है और आपका ब्रेन जल्दी एग्जाम्स में चीजें रिकॉल करेगा। तो दैट इज अ प्लेस where you are sitting and studying, the position, your shape of the body and your timings। ब्रेन को हर 50 to 55 मिनट्स के बाद ब्रेक दीजिए। ब्रेक मीन्स खड़े हो गए, देख लिया कि हाँ 45-50 मिनट्स हो गए हैं, लेट्स हैव अ ब्रेक, स्टैंड अप, डू स्ट्रेचिंग, थोड़ा घूम लिए, थोड़ा वो कर लिया, जस्ट रिलैक्स योर माइंड फॉर सम टाइम एंड देन कंटिन्यू योर स्टडीज। तो वो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट। देन हैव अ प्रॉपर स्लीप। अपना स्लीप, अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रात को पढ़ रहे हैं, सारी सारी रात पढ़ते हैं, दिन में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो चीज, अब रात को ब्रेन एक्टिव है तो दिन में अब ब्रेन को वही है कि दिन में तो मुझे सोना ही है, और तो जब वो एग्जाम देने जाएगा तो उसको वो बैडली अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो अपना स्लीपिंग पैटर्न पे ध्यान दीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। अगर आपका सोडियम कंटेंट ज्यादा इंक्रीज रहेगा बॉडी में, जैसे सोडियम कंटेंट मींस यू आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ जंक फूड एंड समथिंग, तो वो भी आपका एक स्लीप डिस्टर्बेंस आपको ज्यादा देगा, आपकी कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। सो टेक लॉट्स ऑफ पोटेशियम, फ्रूट्स खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, जो आपके मेंटल हेल्थ और आपके हेल्दी वाइब्स क्रिएट करेगा, आपकी बॉडी में अच्छी हेल्थ क्रिएट करेगा, तो वो आपकी कंसंट्रेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। सो दिस इज द यूजली टेक्निक्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स। अगर उनको कोई भी ऐसे यूज करना है तो दे कैन डू दैट। Today's digital world, distractions are everywhere. How can students manage distractions while studying? Everything and everyone is on social media these days, Right. आप अपने फोन को दूर नहीं रख सकते। हर 10 मिनट बाद यू हैव टू ओपन योर अकाउंट एंड सी क्या अपडेट है उसकी लाइफ में, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये चीजें एकदम से नहीं छूटती कि अब एग्जाम आ रहे हैं मैं 10 दिन अपने उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। नो, ये चीजें आपको पहले से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। इफ योर एग्जाम इन मार्च, बिकॉज योर बॉडी एंड ब्रेन नीड्स टाइम, आप उनको समय लगेगा चीजों को अडेप्ट करने के लिए, मिनिमम 21 डेज अडेप्ट करने के लिए लगते हैं। अगर आज मैं कहूँ कि मैं 10 मिनट के लिए अपना फोन छोड़ रही हूँ एंड आई एम सिटिंग
ऐसे ही आई एम नॉट डूइंग, माई माइंड इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड समवेयर, तो मुझे ऐसा होगा कि लेट्स चेक माई फोन, लेट्स चेक माई फोन, क्या हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है, राइट? तो अपने ब्रेन और बॉडी को ट्यून करिए, थोड़ा अपने थोड़ा इसको ब्रेक दीजिए। और ये एकदम से ऐसा नहीं होगा कि कल से मेरे एग्जाम्स प्रिपरेशन स्टार्ट है, मेरे परसों से एग्जाम है तो मैं आज फोन त्याग रहा हूँ, दैट इज सो नॉट पॉसिबल। ये चीजें आपको थोड़े टाइम पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और आपके ब्रेन को एटलीस्ट 21 डेज का साइकिल दीजिए उस चीज को अडेप्ट करने के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे हम बोलते हैं कि अकाउंट्स में बहुत ज्यादा एडेड हैं, फ्रेंड्स की लाइफ में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, इस चीज को पॉज दीजिए। पेरेंट्स और जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी बहुत हेल्प करें। अगर आप बच्चे के सामने बैठ के फोन चलाएंगे या टीवी देखेंगे तो डेफिनेटली बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट होगा, राइट? तो पहले क्या होता था कि बच्चे के एग्जाम्स आ गए, टीवी को बंद करके साइड में रख दिया कि जब तक एग्जाम्स हैं हम लोग टीवी नहीं चलाएंगे। तो वहां बच्चा तो देख नहीं रहा, बट साथ में पूरी फैमिली भी नहीं देख रही। अब टीवी तो बंद हो गए हैं, पीपल आर नॉट वॉचिंग टीवी अ लॉट दीज डेज, बट दे आर ऑन देयर फोन्स, राइट? तो फोन्स के साथ भी ऐसा करना चाहिए हर फैमिली मेंबर्स को कि इसके सामने हमें फोन यूज नहीं करना, अदरवाइज उसको भी होगा कि मुझे फोन देखना है, फोन देखना है, फोन देखना है। ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, फैमिली डिस्ट्रैक्शन हो गई और सेल्फ डिस्ट्रैक्शन हो गई। तो उस चीज पे आप होल्ड रखिए। जितना आप अपने माइंड को इन्वॉल्व करेंगे, अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेंगे, और जितना अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट रखेंगे थ्रू फॉर द स्टडीज, इट वुड बी हेल्पफुल। फोन जब भी हम यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, वो रेडिएशन आपके ब्रेन पे भी पड़ती है, जिससे आपका प्री फ्रंटल लोब बहुत अफेक्ट होता है। प्रीफ्रंटल लोब अफेक्ट हो रहा है, रेज डायरेक्टली पड़ रही है, तो आपका डिसीजन मेकिंग या आपकी इम्पल्सिवनेस बहुत इंक्रीज हो जाती है। इस कारण आपका एग्रेशन बढ़ जाता है, आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते हो, यू गेट कंफ्यूज्ड इजली, आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये चीजें पहले जानना बहुत जरूरी है कि फोन्स के क्या साइड इफेक्ट है। और जब हम एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो अभी तो हमें इस चीज को अलग करना ही है टू गेट अ गुड रिजल्ट। तो कुछ टाइम के लिए हर पेरेंट्स को थोड़ा एडजस्ट करें, फैमिली एडजस्ट करे, और बच्चा भी एडजस्ट करे कि फोन को उनके सामने ना यूज करें। अगर आपको ये है कि आई वांट टू नो, तो आप अपना, जैसे मैंने बोला कि आप अपने पढ़ाई के उसमें हैं, बट जरूर हर शाम को 1 घंटे का ब्रेक जरूर लीजिए, जहां आप अपने उस एनवायरमेंट से बाहर निकले। आप अपनी सोसाइटी में वॉक करिए, पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व हुई, फ्रेंड से मिलने चले जाइए, बाहर घूम आइए, बट यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दैट एनवायरमेंट वेयर यू आर स्टडिंग फॉर द होल डे, करेक्ट? तो आप ऐसे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि उसको भी ब्रेक मिल गया, फोन आपने यही यूज करना, और ब्रेन को आप कोई सिग्नल भी नहीं दे रहे हो। ब्रेन को कैसे सिग्नल मिलता है? जब कोई दूसरा यूज कर रहा है और आप उसको देखते हो। तो आप ऐसे थोड़े टाइम के लिए अपना डिस्ट्रैक्शन कर सकते हो अपने सोशल मीडिया से या अपने मोबाइल फोन से। पर्सनली मैम मेरे को ये चीज फील होती है, इवन इफ आई डोंट हैव माय डिवाइस, आई डोंट हैव एनी डिस्ट्रैक्शन इन माय रूम, मैं सीधा पढ़ भी रही हूँ, देन ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आई एम नॉट एबल टू फोकस। मैं 2 लाइन पढ़ती हूँ एंड आई एम लॉस्ट इन माई ओन थॉट्स, आई गेट लॉस्ट इन माई थॉट्स एंड आई डोंट इवन फील लाइक, मैं अपने थॉट्स को सोच सोच के इतना टायर्ड हो जाती हूँ दैट आई एम नॉट एबल टू स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वुड यू लाइक टू टेल द रीजन फॉर दिस, एंड ऑल्सो कि इन सबको इम्प्रूव करने के लिए कोई टेक्निक्स होती हो या फिर एक ऐसा कॉज जिसको हम आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हो? इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। जैसे मैंने बोला कि आप कह रहे हो मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ, तो मे बी वो आपका लर्निंग स्टाइल नहीं है जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, राइट? अगर मुझे मेरा ऑडिटरी अच्छा है, तो जब मैं अपने आंसर सुनूंगी या जब मैं अपने बोल बोल के पढ़ूंगी तो ऑब्वियसली मेरा सारा फोकस वहीं जाएगा, क्योंकि मेरा ब्रेन ऐसे ही ट्यून हुआ हुआ। दिस इज हाउ माई ब्रेन वर्क्स। मुझे सुन के चीजें याद होती हैं, तो मेरा जब मैं सुनूंगी तो मैं ऑलरेडी, मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन वहां जाएगा ही जाएगा, राइट? हो सकता है कि आपको ऑडिटरी आए है और जब आप विजुअल देख रहे हैं तो वो तो आंखें तो नहीं काम कर रही, दैट इज नॉट योर लर्निंग स्टाइल, तो वो डिस्ट्रैक्शन होगी ही होगी, राइट? तो लर्निंग स्टाइल पढ़ाई में इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है उसको आप जानिए। और जो आप बता रहे हैं दैट इज ऑल्सो समवेयर लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को इंक्रीज आप कर सकते हैं। आप, जैसे मैंने कहा, ब्रेक लीजिए, और आपकी एज के बच्चे, इवन छोटे बच्चे भी माइंडफुलनेस
कर सकते हैं, पॉजिटिविटी इज देयर। आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए, जैसे मैंने बोला, सोडियम इंटेक कम कर दीजिए, पोटेशियम इंटेक ज्यादा वो करिए। और आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए आसपास क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं उस चीज पे भी फोकस करें। अब आप रूम में पढ़ रहे हो, पर बाहर टीवी चल रहा है या बाहर से बातें की आवाजें आ रही हैं, तो ऑब्वियसली माइंड वहां भागेगा कि क्या बात हो रही है। तो बच्चों का जब एग्जाम्स होते हैं तो इसका मतलब पूरी फैमिली की एग्जाम्स हैं और सबको उसी हिसाब से ट्रीट करना है। तो व्हेन द चाइल्ड इज स्टडिंग, तो देयर शुड बी अ साइलेंस और देयर शुड नॉट बी अ मेजर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द आउटसाइड, कि बाहर से आवाज ना आए, वो हुए। और कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है। आप ये नहीं कि ऑन द स्पॉट एग्जाम्स आए मैं अपने कंसंट्रेशन पे वर्क करता हूँ, नो, ये चीजें बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती हैं। अगर एग्जाम्स मार्च में है तो बी रेडी फ्रॉम फ्रॉम द जनवरी एस्पेक्ट से आप शुरू हो जाइए कि अब मुझे मेरे फाइनल एग्जाम्स के लिए अपनी बॉडी और अपने ब्रेन को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। करेक्ट। तो अभी जैसे एग्जाम्स आ गए हैं, मार्च में एग्जाम्स हैं, अभी चल रहे हैं, आप अभी से ये सारी चीजें करिए और डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए। अपना पीपीटी पोजीशन जैसे मैंने बताया, ब्रेन को उस हिसाब से ट्यून करिए, आपकी कंसंट्रेशन नेचुरली बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। डाइट पे ध्यान दीजिए और अपना लर्निंग स्टाइल जानिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो आई थिंक दिस इज नॉट योर लर्निंग स्टाइल। आपका ब्रेन कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। अगर मेरे को पता है कि मैं काइनेस्थेटिकली जब तक प्रैक्टिकली करूंगी तो मुझे चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी, तो मेरा उसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा और उसी चीज में ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी। तो उस चीज को हमें पहले जानना है और फिर उस चीज पे फोकस करना। सो एग्जाम्स हम लोगों की मेंटल हेल्थ पे काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। सो इज देयर एनी वे कि हम एग्जाम्स को एक एक्स्ट्रा बर्डन की जगह उसको एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ की तरह देखें, सो दैट वो हमारी मेंटल हेल्थ पे एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले? राइट। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है प्रैक्टिसिंग। राइट। और आई थिंक कि स्कूल्स को भी इस चीज पे काम करना चाहिए, पेरेंट्स को भी इस चीज पे काम करना चाहिए। अगर वो किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या कहीं भी उनका जो भी उनका लर्निंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कुछ भी है, उनको इस चीज पे फोकस करना चाहिए। अगर बच्चा इज डूइंग सेल्फ स्टडी और कोई उसको चेक कर रहा है, इधर मदर और फादर, उनको ये चीज देखनी चाहिए कि आपको एग्जाम फेयर हटाने के लिए यू हैव टू कम इनटू द रेगुलरिटी एंड द प्रैक्टिस सेशन। अब जैसे, अगर मैंने बहुत सारे बच्चों का ऐसा सुना है, एंड आई थिंक दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, कि व्हेन आई वाज इनटू माय 10th बोर्ड्स, तो हमारे स्कूल में प्री बोर्ड्स बहुत सारे होते थे। लाइक पहले यूनिट टेस्ट हुआ, फिर आपके मिड टर्म्स हुए और फिर बहुत सारे प्री बोर्ड्स हुए। प्री बोर्ड्स में क्या हो रहा है कि आपको वही पूरा सिलेबस कवर हो गया और मार्क्स का आपको पूरा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पेपर आ रहा है, जो आपको वहाँ फाइनल बोर्ड्स में भी प्रिपेयर करके जाना है। तो आप वहां कर रहे हो, अब आप वहां लिख रहे हो, आपको लिमिटेड 3 आवर्स का टाइम मिल रहा है, आप लिख रहे हो, सब कुछ वो कर रहे हो, तो देयर यू आर प्रैक्टिसिंग। हर चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको उसी हिसाब से मार्क्स मिल रहे हैं, बिकॉज टफ, वो स्कूल वाले भी बहुत जल्दी टफ मार्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यू आर गेटिंग मार्क्स एंड यू, आपको पता चल रहा है कि कहाँ आपका लैक कर रहा है, कहाँ आपकी चीजें। सो प्रैक्टिसिंग एंड रिहर्सिंग इज अ बेस्ट की फॉर दिस, कि आप अपना प्रेशर कम कर सकते हैं, कि आपकी बॉडी और माइंड को पता है कि ये 3 घंटे होने हैं, ये सवाल आएगा। और लिखने की स्पीड तो मैं वैसे ही हमारे स्कूल वाले बना चुके हैं, इतने सारे प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, सो आई कैन मैनेज माई होल क्वेश्चन पेपर इन द 3 आवर्स। तो मेरा कोई क्वेश्चन भी ना रहे और मैं चीजें मैनेज कर लूँ। प्रैक्टिसिंग एंड रिहर्सिंग, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टार्टिंग से ही आप ग्रेजुअली या स्टेप बाय स्टेप चीजें करिए। अगर आप बोलोगे कि ओ शिट, आज के दिन मुझे 10 के 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, दैट इज सो नॉट पॉसिबल। तो टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, जो जब वो फुलफिल हो जाए, उसके बाद जब आपको पता है कि नाउ आई एम डेड श्योर कि मुझे ये चीजें अच्छे से याद हो चुकी हैं, देन यू आर गोइंग टू शिफ्ट ऑन द अदर चैप्टर और अदर साइड। तो छोटे छोटे गोल्स को रखिए, छोटी छोटी चीजों को अचीव करिए, और जो भी आप अपना गोल कवर कर रहे हैं, दैट शुड बी 100%, कि आपने एक रिवाइज किया और वो चीजें याद हो। तो अगर लास्ट के 2 चैप्टर्स भी रह गए, कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट फर्स्ट 8 चैप्टर्स यू आर वेरी, मतलब आप सेट हो उस चीज के लिए कि आपको बहुत अच्छे से सब चीजें आ गई। तो स्टेप बाय स्टेप लर्न करिए,
और जितनी आप प्रैक्टिस एंड रिहर्सल्स करेंगे उतना आपका ब्रेन, आपका बॉडी उस हिसाब से ट्यून होगा, और जो आपकी बोर्ड्स में बहुत या आपके फाइनल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। Also like to ask कि are there any alternate methods जो अब हम एग्जाम्स फॉर एग्जाम्पल हम लोग ओरल टेस्ट लेते हैं देन क्विजेज होती हैं, सो आर देयर एनी ऑल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स जिससे हम फ्यूचर में एग्जाम्स को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट एग्जाम्स को एक लेस ऑफ अ बर्डन बना सकते हैं? या यस, जिससे अभी मैंने शायद यही बात करी कि आपने क्या किया कि आपने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे टेस्ट्स को। जैसे यूनिट टेस्ट है 3 चैप्टर्स का, फिर हाफ ईयरली हो रहे हैं फर्स्ट 6 चैप्टर्स के। तो व्हाट यू हैव डन कि आपने छोटे छोटे असेसमेंट्स में, असाइनमेंट्स में चीजों को डिवाइड कर दिया, और बच्चा इज गेटिंग प्रिपेयर्ड साइड बाय साइड। वो हर चीज लर्न कर रहा है, हर चीज अच्छे से मैनेज कर रहा है। करेक्ट। तो जब वो फाइनल एग्जाम्स आएंगे तो इट इज द चाइल्ड इज फीलिंग लेस प्रेशर, क्योंकि वो चीजें पहले भी कर चुका है, पहले भी चीजें रिपीट हो चुकी हैं, और अब वो इस चीज के लिए प्रिपेयर है। तो वो एग्जाम फियर थोड़ा कम होगा। ये चीज अगेन इंस्टीट्यूट्स को देखनी है, स्कूल्स को देखनी है कि वो अपने एग्जाम्स तक पहुंचने, मतलब जब तक आप मार्च तक पहुंच गए हो तब कैसे अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं और कैसे बच्चों के लिए वो चीज नॉर्मल बना रहे हैं। राइट। टीचर्स को भी मुझे लगता है, या स्कूल्स को भी मुझे लगता है कि समझना चाहिए कि एवरी टेक्निक इज नॉट गोइंग टू अप्लाई ऑन एवरी स्टूडेंट। टीचर एक तरीके से आके सबको पढ़ा के चली गई, अब किसका विजुअल था, किसका ऑडिटरी था, किसका काइनेस्थेटिक था, किसको किस लेवल पे समझ आया, नोबडी नोस। राइट। अब जिसने सुन के अच्छे से लर्न कर लिया उसके मार्क्स अच्छे आ गए, बट किसी को प्रैक्टिकल का टाइम नहीं मिला तो उसके मार्क्स कम आ गए। टीचर ने जब बोर्ड पे नहीं लिखा और उसने बुक में अच्छे से नहीं पढ़ा तो शायद उसके भी मार्क्स कम आ गए। तो आप ऐसी असेसमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं या ऐसी असाइनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए जो तीनों फैक्टर्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, और बच्चा जो भी वट एवर द असेसमेंट, वट एवर द टेस्ट यू आर गिविंग इन द स्कूल और इन द क्लास, बच्चा वो प्रैक्टिसिंग मोड पे हमेशा रहे। राइट। क्लास टेस्ट होते थे, एक चैप्टर खत्म हुआ, क्लास टेस्ट है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द क्लास टेस्ट? या क्लास टेस्ट को कभी इतना सीरियस भी नहीं लिया जाता, बच्चे कहते हैं चलो क्लास टेस्ट है, लेट इट गो। नो, हर चीज को एक अच्छे तरीके से मैनेज करें, और बच्चों के या अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाल सकते हैं आप कि दिस इज गोइंग टू बी, आपके फाइनल्स में एड ऑन होंगे, या ये फाइनल्स में आपको किस तरीके से जाके हेल्पफुल रहेगा। आप ऐसे करके प्रैक्टिसिंग और रिहर्सिंग से चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं। ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चीजों को लर्न करके उस चीज को आप दोबारा रेपिटेशन में डाल सकते हैं कि फाइनल एग्जाम तक वो चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। इस हिसाब से अगेन एंजाइटी और फियर बच्चे का कम होगा, बिकॉज whole syllabus is covered and bacha is already into practicing and rehearsals and giving unit test and everything of this part, तो वो उसके लिए हर चीज से सपोर्टिव रहे। So the last question from my side to you for today would be that how can students balance their mental health and personal development? Yes, mental health is very, very important. First of all, you need to know what the mental health is, right? How you are feeling, how emotionally you are feeling, how supportive you are feeling कि हाँ मेरे support में कोई है, या I have people with whom I can discuss my things, जिसके साथ मैं दिल खोल के बात कर सकता हूँ। और अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर रखने के लिए आप अपनी चीजों को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं या अपने थॉट प्रोसेस को कैसे फिल्टर कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज वट एवर द बिहेवियर यू आर डूइंग दैट शो योर मेंटल हेल्थ। राइट। आपका थॉट प्रोसेस है, आपका जो इमोशनल फैक्टर कैसे आपको अफेक्ट कर रहा है वो आपके बिहेवियर में निकल कर आएगा, बिकॉज थॉट लीड्स टू एक्शंस। करेक्ट। तो ये है मेंटल हेल्थ। दूसरा है पर्सनालिटी, जो आपने बोला, पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान के अपने ट्रेट्स हैं, अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बिल्ड बहुत डोमिनेटिंग नेचर के या इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उससे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो किसी डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट में रहेंगे तो वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, किसी हैप्पी एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हैप्पी हो जाएंगे। तो उनको एनवायरनमेंट उनके थॉट प्रोसेस को और उनके बिहेवियर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये पर्सनालिटी पहले जानो कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप किस तरह, किस टाइप के लोग हैं।
जब हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं विच इंक्लूड्स योर लॉट्स ऑफ थिंग्स, हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, what type of a overall appearance you are having, what type of a communications you are having, what type of a listening capacity, listening skills you are having, बहुत सारे फैक्टर्स आपके पर्सनल डेवलपमेंट के काम में आते हैं। तो जो आपका सवाल था कि पर्सनल डेवलपमेंट को कैसे मैनेज करना है, मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेल्फ अवेयरनेस। पहले आप अवेयर रहो अपने बारे में। इधर यू कैन डू इंट्रोस्पेक्शन, इधर यू कैन डू लॉट्स ऑफ साइकोमेट्रिक और बायोमेट्रिक टेस्ट ऑन योरसेल्फ टू नो अबाउट योरसेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। आप अगर इस तरह बिहेव कर रहे हो तो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस बिहेवियर, आपको सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कुछ अफेक्ट कर रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। एंड बिहेवियर व्हाट एवर यू आर बिहेविंग इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, राइट। तो पर्सनल डेवलपमेंट में आप कैसे बात करोगे, कैसे चीजों को डील करोगे, ये सारी चीजें आपके मेंटल हेल्थ से निकल कर आती हैं। वी हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल जो फिजिकली बहुत फिट हैं बट मेंटली वो बहुत ज्यादा तंग हैं, इस कारण उनकी लाइफ बहुत दिक्कतों में चलती है, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज नॉट सपोर्टिंग और देयर इज अ थिंग जो उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है या बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। और मे बी lots of reasons can be there, loneliness, depression, grief, any kind of a fear, phobia, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ। अगर आप खुद अवेयर्ड, हैप्पी, सेटिस्फाइड फील करोगे तो आप देखोगे कि हाँ व्हाट द चेंजेस यू नीड इन। So self-awareness, know about yourself first, what type of a personality you are having, what type of strengths and weaknesses you are having, what type of a talent you are having, what type of a potential you are having. जब आप अपने बारे में जानोगे तो आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर करोगे, इधर योर मेंटल हेल्थ, because now when you know about yourself you know about your cope-up strategies as well। कि मेरी मेंटल हेल्थ अगर मुझे कहीं भी डिप्रेस्ड फील होता है तो आई नो कि दिस इज माय फोटे, दिस इज माय स्ट्रेंथ, मुझे ये एक्टिविटी करनी है, आई फील बेटर। तो you start working upon yourself when you know where you are lacking, what's your weaknesses, and you start doing things to improve your strength and cope up your weaknesses or cope up your mental health as well। तो आपको कोप अप स्ट्रैटेजीज पता चलती हैं अपने बारे में, कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हो, उस चीज के ऊपर आप काम करोगे जो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को चेंज करेगा, आपकी पर्सनालिटी को एक अलग तरीके से दर्शाएगा। सो this is how mental health is very important and personal development is very important, and it is very relatable to each other. Know about yourself first. This discussion has been incredibly insightful. Your guidance has provided students with practical ways to overcome exam anxiety and build confidence in their abilities. We truly appreciate your time and expertise today. And to our listeners, always remember exams do not define your worth, they are simply a part of your learning experience. Keep believing in yourself, stay focused, and take on challenges with a positive mindset. Until next time on the ABCD Talk Show. Thank Thank you. you so much.